So it is my great pleasure to invite and to have a Kashish Wadhwani in our Safal Day students group session. And thank you so much, Kashish, for accepting our invitation within a very short period of time, and to be here on a Sunday afternoon. So thank you so much. Even thank you so It's a much to pleasure. all of my Safal Day students to be here and their parent also. And let me share something good point and something very unique thing about Kashish Wadhwani. Why she is here? Why she is different than others, and why she is here to teach something to you or to share something to you as a student. So it is really feeling proud to say something and some good points about Kashish, that she is uh, she is NLP practitioner. She is the youngest life coach and relationship coach of India. And one thing which I forgot to mention on that WhatsApp message, she is the youngest dermatographic consultant. And she is not only the youngest dermatographic consultant in India, but she won that award, that because it's that CFMID award, right? That youngest, Dermatographics highest consultant. dermatographic consultant, something. I sorry, I forgot that. Yeah, the youngest. Yeah, youngest dermatographic consultant of India, and she is impacting others' life through videos, through courses, online, offline courses, and through sessions and many more. And she is very popular amongst young people and all age people. And it is now I'm taking over this session to Kashish Wadhwani. Kashish, forgive me if I speak something less about you, because No, lines are very few to introduce your a personality like you, but it is really proud for us and for my student also to have you in our session. So, it's my pleasure. first of all, please share some light on this topic, today's topic, that about love unconditionally. How and why it is important for a teenager student, especially for my Safal Day students. So, please share something about that, and you can take in charge now. Yes, thank you. Thank you so much for having me here. Thank you so much, guys, for being here with me today because it's Sunday. I know very few people like you guys are here. So I would like to say something. There are a lot of people I have seen in my life, and there are a lot of kids I have seen in my life. But I will like to salute you guys because you are investing on yourself from today. I hope English is okay with all of you, right? अगर मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में बात करूँ तो चलेगा या फिर सिर्फ इंग्लिश या सिर्फ हिंदी whatever you guys say क्या चलेगा तो मैं उसी लैंग्वेज में बात करूँ या फिर तुम्हारे भाई वाली लैंग्वेज में बात करूँ ब्रो वाली लैंग्वेज में बात करूँ whatever you guys say just thumbs up if English हिंदी दोनों चलेगा just thumbs up English हिंदी दोनों चलेगा तो okay perfect okay. Okay, so let me first tell me about myself a little more so that you know what background I'm from, what kind of a background I'm coming from. So my name is Kashish Wadhwani. Sir ne bataya I'm India's youngest life and relationship coach, and I am doing this from like when I was 17 years old. I became a life coach when I was 18 years old, and I started my journey from there. And why exactly I am India's youngest life coach? Because of course I started a little earlier, and on 18 I became a life coach. Now a lot of people have this thing in itni choti umar or itna bada tag, so it's kind of a big thing. Yeah, it's kind of a big thing, but life coaching is nothing to do with the age factor. It's just the maturity and how you handle the client to for their success rate is all important. So whenever you could, you know, you have the big dreams, I hope you have a big dreams in your life, and it's good to have them. But you know, there's one thing which is the most important when you're having big dreams and you're dreaming little high. And the one thing which is most important is you will get criticism.
You know what I mean by criticism? Criticism मतलब होता है जो लोग आपको नीचा दिखाते हैं, ठीक है? So आपको ऐसे बहुत लोग मिलेंगे जो आपको नीचा दिखाते हैं. You have to eat criticism every single morning and every single night. और जिसने क्रिटिसिज्म खाया सुबह भी और रात को भी, और फिर भी वो चलता रहा अपने ड्रीम्स की तरफ आगे से आगे, सो यू विल गेट द सक्सेस. बिकॉज you know, जब सर ने मुझे बताया था कि उनके बच्चे उनके किड्स वेबिनार्स कर रहे हैं, आई वाज लाइक शॉक्ड, आई वाज सो हैप्पी, यू नो, मैं बहुत ज्यादा खुश थी. बिकॉज इस एज में अचीव करना ये चीजें हमारे जैसे लोगों के लिए भी टफ होता है. बिकॉज वेबिनार इज लाइक समथिंग I am usually not comfortable with more, and you guys are doing it, or maybe some of you did it, I don't know. But yes, my era of field is जैसे लाइफ कोचिंग में भी ना era होता है कि आप कौन से टाइप के लाइफ कोच. जैसे डॉक्टर होते हैं तो डॉक्टर अलग अलग टाइप के होते हैं, तो लाइफ कोचिंग में अलग अलग टाइप के होते हैं. सो मेरा टाइप है marry yourself. I inspire people to marry themselves in order to have better life and relationship as well. Now अभी मुझसे सब पूछते हैं ये marry yourself है क्या कशिश, अपने आप से शादी करना? बिकॉज आज तक तो ये सुना था कि शादी तो हम किसी और से करते हैं, तो खुद से कैसे कर सकते हैं? ठीक है, तो आज तक ये भी सुना था कि हम प्यार तो सिर्फ दूसरों को करते हैं, तो खुद को कैसे कर सकते हैं? बट अभी ये ना जनरेशन बदल चुका है. हम 2020 में आ चुके हैं जहाँ पे हम बहुत ज्यादा अवेयर हो गए हैं हर चीज को लेके. एंड नाउ इट्स अ टाइम टू अपग्रेड आवरसेल्फ. जैसे कि हम अपना फोन अपग्रेड करते हैं, राइट? आई होप यू गाइज आर ऑन इंस्टाग्राम और फेसबुक और एनी ऑफ द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म. हमेशा ना हर 6 महीने में या हर 1 साल में वो अपग्रेडेशन मांगता है, आराम से 3-4 महीने वो अपग्रेडेशन मांगता है. तो हम अपने दिमाग को कैसे अपग्रेड नहीं कर रहे हैं? जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टूल है जिसकी वजह से हम चल रहे हैं, हमारा बॉडी चल रहा है, हम अपना लाइफ जी रहे हैं, हम उसको अपग्रेड नहीं करेंगे तो हम क्या करेंगे? हम मोबाइल को तो अपग्रेड कर लेते हैं, बट हम अपने आप को अपग्रेड करना कैसे भूल जाएं? सो लेट्स टॉक ऑन द अपग्रेडेशन फर्स्ट. कि टुडे व्हाटएवर इंफॉर्मेशन आई एम अबाउट टू शेयर यू, इट्स उसको ना मैरी योरसेल्फ टॉपिक से रिलेट मत करना, बट अपनी लाइफ से रिलेट करना. देखना कि वो जो टेक्निक्स मैं आपको बताने जा रही हूँ वो आप अपनी लाइफ में कैसे अप्लाई कर सकते हो और कैसे अपनी लाइफ को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर सकते हो. ट्रांसफॉर्मेशन इज नॉट इजी बट इट्स वर्थ इट. मतलब ट्रांसफॉर्मेशन में हमेशा ना थोड़ी तकलीफ होती है. जब एक डायमंड को पॉलिश किया जाता है ना, तो उसको उसके शेप में लाने के लिए उसको बहुत घिसा जाता है. बट वंस द डायमंड इन द शेप, तो उसकी कीमत पता चलती है, राइट? सो सेम वे हम ट्रांसफॉर्मेशन को डायमंड से कनेक्ट करेंगे कि आपको ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी पे थोड़ी सी मेहनत लगेगी, बट व्हेन यू डू इट तो आपकी वर्थ पता पड़ेगी. So let's get started with today's session, which is marry yourself. और आप लोगों की भाषा में अगर मैं simplify करूं तो love yourself और love unconditionally. Now अभी क्या है ना, प्यार शब्द तो कितना easy है ना. अगर आपकी कोई बॉयफ्रेंड होगा या गर्लफ्रेंड होगी या हस्बैंड आने वाले होंगे या फिर I have this parents also, ठीक है, या फिर आप किसी को पसंद करते होंगे, तो क्या होता है, you are like कि हम उससे प्यार करते हैं, right? You love the another person, or it's just not about the person. चलो person हटा दो, तो हम किसी चीज से भी तो प्यार करते हैं, right? हम कपड़ों से प्यार करते हैं, हम गाड़ियों से प्यार करते हैं, हम अपने लैपटॉप से प्यार करते हैं. I have kids, you know, जो पेन, अब एक उनका पेन का बहुत ज्यादा कलेक्शन, वो अपने पेन्स वगैरह से काफी प्यार करते हैं. तो हमारे पास तो बहुत सारी चीजें हैं प्यार करने के लिए. चीजें भी हैं, हमारा करियर भी है और हमारे पार्टनर्स भी हैं. whatever you say, right? हमारे पेरेंट्स भी हैं, ठीक है, हर इंसान भी है और हर टाइप की चीज भी है. बट मुझे एक बात बताओ, आप अगर अपने आप से प्यार नहीं कर सकते तो क्या आप किसी और से प्यार कर सकते हो? बताओ. अगर आप 3 दिन तक खाना नहीं खाओ और सिर्फ अपने कुत्ते को ही खाना खिलाते जाओ, तो आपका जीवन चल सकता है? आपका बॉडी चलेगा क्या? टेल मी दैट. जस्ट टाइप इट डाउन और जस्ट पुट योर हैंड्स अप, अनलॉक योरसेल्फ फ्रॉम दिस म्यूट बटन एंड टेल मी, चलेगा क्या? लव इज समथिंग जो पहले आपको अपने आप को देना चाहिए, एंड देन यू कैन सर्व अदर्स अनकंडीशनली. ये एग्जाम्पल मैं हमेशा यूज करती हूँ इन ऑल माई सेशंस, विच इज कि आपका पड़ोसी आपसे कोई कुछ चीनी मांगने आया, ठीक है, अगर आपके घर में ही चीनी नहीं है तो आप उसको चीनी कैसे दे पाओगे? बताओ, दे पाओगे क्या? नहीं दे पाओगे. आपके पास होगा तो ही आप दे पाओगे ना. सो सेम वे लव इज रिक्वायर्ड. चाहे आप अपने करियर से प्यार करो या चाहे आप अपने किसी इंसान से प्यार करो या किसी चीज से प्यार करो, इट विल ऑल गो अवे. हर चीज चली जाएगी. आज जिस चीज, जो आप बचपन में 3 साल पहले जिस चीज से बहुत प्यार करते थे,
आज उससे नहीं करते, आज नई चीजों से करते हो, तो आने वाले 3 साल में एक नई चीजों से प्यार करोगे. सो लव वर्ड्स इज समथिंग जो हम बहुत ज्यादा यूज करने वाले हैं आज. सो जस्ट क्लियरिंग अ कंसेप्ट कि पहले अपने आप से शुरू करो एंड देन किसी और पे डाइवर्ट करो. सो आज के टॉपिक पे मैं 4 पिलर्स के बारे में बात करूंगी. इफ यू वांट यू कैन राइट इट डाउन. 4 पिलर्स के बारे में बात करूंगी. नंबर 1, हीलिंग. मतलब हम, आपकी एज जो भी हो, अभी तक आपके मन में कुछ तो ऐसा पड़ा हुआ है जो आपकी मम्मी ने ना बचपन में आपको बोला था, या आपके पापा मम्मी की लड़ाई आपके दिमाग में फिट थी, या फिर आपके किसी फ्रेंड ने आपको ऐसा छीन लिया था ना टिफिन का वक्त, वो आपको अभी तक याद है. आपको याद है वो सारी चीजें जो आपके साथ पहले हुई हैं, और वो सारी चीजों ने आपको खुश नहीं किया. बहुत सारी चीजों ने खुश किया और बहुत सारी चीजों ने दुखी भी किया. तो आज हम उन सारी चीजों को ठीक कर देंगे जिस चीज ने आपको दुखी दिया. इफ अ पेरेंट इज वाचिंग दिस वीडियो और अ सेशन, व्हाटएवर यू से, सो यू आल्सो हैव समथिंग, लाइक हम अडल्ट बन जाते हैं तो हमारे दिमाग में तो और ज्यादा चीजें होती हैं. यू हैव समथिंग जो पास्ट की हैं विच यू डोंट लाइक, और जिसको आप फॉरगिव नहीं कर सकते. वो यू आपके मन में अभी तक है कि यार ये बात ना तकलीफ देती है. एंड फॉर किड्स ऑल्सो, आप स्कूल जाते हैं, आपको सारे बच्चे पसंद नहीं करते हैं. आपके कुछ बच्चे आपको बुली करते हैं, आपको परेशान करते हैं. आपकी कुछ टीचर है जो आपको हमेशा परेशान करती है, या फिर कोई बच्चे हैं जो आपको हमेशा छेड़ते रहते हैं किसी ना किसी बात पे. सो आपके पास है ऐसे लोग, राइट? इफ यू हैव, अगर आप कनेक्ट कर पा रहे हैं उस चीज से, या उस इंसान से, या उस इंसिडेंट से जो पास्ट में आपके हुआ है, तो टाइप यस. कोई ऐसी चीज जिसने आपको तकलीफ दी हो. Guys, I'm waiting for your typing. If yes, or if you know whatever it is. Yes, okay. Yes. I want this session to be interactive, क्योंकि ये सेशन जितना इंटरेक्टिव रहेगा उतना आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा, राइट? सो आज हम क्या करेंगे, आज हम ना उस पेन को हटा देंगे. अब मेरे पास तो मैजिक है. आई हैव दिस मैजिकल थिंग इन मी कि मैं वो चीज आपको बताऊंगी ना, ये टेक्निक आपको बताऊंगी ना, तो आप जाओगे यस क्या बात है, इससे ना बिल्कुल सब ठीक हो जाता है. मतलब कोई पेन ही नहीं लगता, बुरा ही नहीं लगता. क्यों, कैसे? क्योंकि देखो, जो मैं टेक्निक आपको बताने वाली हूँ वो इतनी पावरफुल टेक्निक है ना, कि अगर आपने वो टेक्निक कर ली, तो आज से लेके जब तक आप बड़े नहीं हो जाते, जब तक आप बुढ़े नहीं हो जाते, अगर आप वो टेक्निक फॉलो करते रहे, तो आपकी लाइफ में आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी. आज आप छोटे हो, आपको पढ़ाई का प्रेशर है. कल आप बड़े होंगे, आपको जॉब का प्रेशर होगा, बिजनेस का प्रेशर होगा, फिर उसके बाद में आपको पैसे कमाने का प्रेशर होगा, उसके बाद में फैमिली संभालने का प्रेशर होगा. तो इट्स ऑलवेज गोइंग टू बी समथिंग. हमेशा कुछ ना कुछ रहेगा. बट हम आज को कैसे फिक्स कर सकते हैं ताकि हमारा फ्यूचर बहुत ही ब्राइट रहे, हम उस बारे में बात करने वाले हैं. सो जैसे मैंने कहा, दिस इज द वेरी फर्स्ट टॉपिक विच इज हीलिंग. हमारी भाषा में इसको कहते हैं हीलिंग, मतलब ठीक करना. लेमन लैंग्वेज में हम बोलते हैं ठीक करना इंसान को, कि इंसान को कितना भी प्रॉब्लम हो ना तो ठीक हो जाता है. जैसे कि आप अगर रोते हैं, अगर आपको किसी ने कुछ बोल दिया, आपको बुरा लगने लग जाता है, आपको कोई नीचा दिखाता है, आपको बुरा लगने लग जाता है, या फिर आप बैठी बैठी रोने लग जाते हैं, या फिर किसी ने आपको कुछ गंदा बोल दिया, किसी ने बैक बिचिंग कर ली, गॉसिप कर ली आपके बारे में. सो देयर ऑलवेज गोइंग टू बी समथिंग, राइट? तो ये टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत पावरफुल है, विच इज फॉरगिवनेस, माफी. आप सोच रहे होंगे कि ये तो कुछ नहीं है, ये तो मेरी मम्मी भी बोलती है, फॉरगिव कर दो, क्या फर्क पड़ता है, छोड़ दो, भूल जाओ, लेट इट गो. आजकल ना इंस्टाग्राम पे कोट्स हैं लेट इट गो वाले बहुत ज्यादा. सो लेट मी टेल यू, यस इट्स इम्पोर्टेंट टू लेट इट गो, प्लस इट्स इम्पोर्टेंट टू फॉरगिव देम. आपको याद है कि उसने अभी तक कैसा किया था, आपको याद है आपकी दादी ने आपको उससे कंपेयर किया था, आपको याद है वो सारी चीजें. यू हैव समथिंग. लेकिन आप
इतनी छोटी एज में मैं अभी इस पैटर्न को ब्रेक करना चाहती हूँ, क्योंकि अगर आज मैंने इस पैटर्न को ब्रेक कर दिया तो आप ये चीज सेम पेन आप फ्यूचर में नहीं लेके चलोगे, राइट? तो मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ अभी। एक बार एक टीचर ने क्या किया, उसने पूछा अपनी टीचर से, नहीं, उसने अपने स्टूडेंट्स को बताया फॉरगिवनेस के बारे में, ठीक है, फॉरगिवनेस के बारे में बताया अपने स्टूडेंट्स को। तो उसके एक स्टूडेंट ने पूछा कि फॉरगिवनेस क्यों जरूरी है, व्हाई फॉरगिवनेस इज इम्पोर्टेंट? माफी देना जरूरी थोड़ी ना है, हम ऐ नहीं छोड़ सकते ना, लेकिन हम कैसे भूल सकते हैं उसने ऐसा क्यों किया मेरे साथ, मेरी तो कोई गलती भी नहीं थी फिर भी उसने ऐसा किया, हम ऐसा सोचते हैं ना। सो एक बार उस टीचर से उसने पूछा फॉरगिवनेस क्यों जरूरी है। तो उस टीचर ने कहा कि एक काम करो, जितने भी लोगों ने तुम्हें हर्ट दिया है, पेन दिया है, दुख दिया है, उन सबका एक एक नाम लिख लो, एक एक स्टोन पे, एक एक पत्थर पे उसका नाम लिख लो और वो अपने बैग में डाल दो, ठीक है? और वो बैग उठा के तुम रोज चलना, तुम रोज स्कूल भी आना, तुम रोज घर भी जाना, तुम रोज ट्यूशन भी उसी बैग के साथ जाना, लेकिन वो सारे पत्थर उसमें पड़े होने चाहिए, जितने भी लोगों ने तुम्हें तकलीफ दी है उन सबके नाम लिख के उस बैग में डाल देना। तो एक दिन हुआ उसको शोल्डर में पेन होने लग गया, क्योंकि पत्थर बैग हैवी हो गया, उसको पेन होने लग गया। फिर दूसरे दिन में वो ऐसे झुक के चलने लग गया। तीसरे दिन में उसकी कमर में दर्द होने लग गया। फिर उसने जाके टीचर को बोला, टीचर मैं ये नहीं उठा सक रहा हूँ। तो टीचर ने पूछा क्यों? तो बोला कि इसमें बहुत सारे पत्थर पड़े हुए हैं, मेरा शोल्डर पेन हो रहा है, मेरा बैक पेन हो रहा है और मैं नहीं लेके जा सक रहा, मुझे ये निकालना पड़ेगा। तो टीचर ने बोला कि जब ये सिर्फ पत्थर हैं जिसके ऊपर तुमने नाम लिख के अपने बैग में डाल दिया, जिसको सिर्फ तुम उठा पा रहे हो, जो तुम्हें है ना शोल्डर पेन दे रहा है, बैक पेन दे रहा है और तुम्हारा कमर झुक गया है, ठीक है? तो सोचो, इतने टाइम से तुमने अपने मन में ये सारी बातें रखी थी, तो उसने तुम्हारा इंटरनल सिस्टम कितना खराब कर दिया होगा। ये तो एक दिन नहीं हुआ, तुम्हारे शरीर को तकलीफ होने लग गई तो तुम्हें पता चल रहा है, लेकिन उन सारी बातों ने तुम्हारे दिमाग को और तुम्हारे इंटरनल बॉडी को कितना डैमेज किया होगा। So that's why forgiveness is important. When we forgive, we are freeing two souls. हम दो जनों को फ्री कर दे रहे हैं, एक तो खुद को और एक सामने वाले को। इस गलतफहमी में कभी भी मत रहना कि हम जब किसी को फॉरगिव करते हैं, हम अपनी दादी को फॉरगिव कर रहे हैं कि उसने मुझे कंपेयर क्यों किया, या हम अपने दादाजी को फॉरगिव कर रहे हैं जो हमें चॉकलेट नहीं दिलाई बचपन में और हमारे भैया को दिला दी, या फिर हम अपने पेरेंट्स को फॉरगिव कर रहे हैं कि उसने तुम्हारे बड़े भाई को ज्यादा अटेंशन दिया, तुम्हें नहीं दिया, या फिर हम किसी को भी फॉरगिव कर रहे हैं, हम किसी को भी बोल रहे हैं कि इट्स ओके, कोई बात नहीं, चलता है, हम किसी को भी ऐसे कह रहे हैं, तो हम अपने आप को फ्री कर रहे हैं। क्योंकि आज अगर तुमने ये सीख लिया, ये थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स है, आई नो, आज तक तुमसे किसी ने फॉरगिवनेस जैसे टॉपिक पे कभी बात नहीं करी होगी, बट इट्स इम्पोर्टेंट कि छोटी सी उम्र में बच्चों को ये सिखाया जाए कि फॉरगिवनेस इम्पोर्टेंट है। लेट इट गो with whole your heart, with soul and with your brain. अभी हम क्या करेंगे फॉरगिव करने के लिए? हम एक छोटी सी एक्सरसाइज करेंगे। मैं नॉर्मली मेडिटेशन कराती हूँ, बट आप लोग बहुत छोटे हैं और आप लोग अभी अभी फॉरगिवनेस से मिले हैं, आपने अभी अभी दोस्ती करानी बाकी है आपकी इस टेक्निक से। तो हम छोटी सी चीज करेंगे, हम एक पेपर लेंगे, ये हमारा पेपर है, ठीक है? हम ऊपर लिखेंगे पेन, ठीक है? पेन के आगे इज इक्वल टू लगाएंगे, उसके बाद हम पॉइंट लिखेंगे कि हमें इसने पेन दिया, इसने पेन दिया, इसने पेन दिया। 3 नाम लिख लो जिन्होंने आपको पेन दिया। अभी लिखो, आई एम वेटिंग, 1 2 and 3। लिखो लिखो, इफ आप लिख लो तो यस टाइप कर देना व्हेन यू डू इट। बड़े भी एक्सरसाइज कर सकते हैं, हाँ, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते, इट्स ओपन टू ऑल। यस, ओके भावना, यस। अभी जब आप 3 पॉइंट में लिख लो उन लोगों के नाम जिसने आपको हर्ट किया है,
तो अब आप क्या करेंगे, अब आप पेपर पे लिखेंगे आई फॉरगिव देम, ऐसे आई फॉरगिव देम, ऐसे नीचे करके लिखेंगे आई फॉरगिव देम। और एक एक नाम पे उंगली रख के, जैसे पहला नाम है इस पे उंगली रख के उसको, उसका चेहरा इमेजिन करो, जो भी नाम आपने लिखा है, जैसे आपने लिखा है मम्मी, तो मम्मी का चेहरा इमेजिन करो और लिखो मैं तो माफ कर दिया मम्मी को, ठीक है यार कोई बात नहीं, गलती होती है, चलता है यार, कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है, मम्मी तो है, कर लिया माफ यार, अब कभी नहीं उस बात को अब मैं अपने मन में नहीं रख रहा, मैंने मम्मी को माफ कर दिया है। मम्मी ने मुझे बचपन में ये वाले कपड़े नहीं दिलाए थे ना, मेरे बड़े भाई को दिला दिए थे ना, मैंने तो मम्मी को माफ कर दिया। जो भी आपकी सिचुएशन हो, जिस पे भी आपको बुरा लगा हो उस बात पे। और इसी के साथ मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ, यू नो मैं जब इस टॉपिक से इंट्रोड्यूस हुई थी तो हमें एक मेडिटेशन कराया गया था, और उस मेडिटेशन में मैं बहुत रोई थी, पता है क्यों? क्योंकि हमें उससे पहले बोला था कि तुम्हें नाम लिखने हैं उन सारे लोगों के जिन्होंने तुम्हें पेन दिया है। तो मैं 17 साल की थी, 17 नहीं 18 साल की थी शायद से उस समय, जब मैं पहली बार किया था, एंड उस टाइम पे मैंने सबके नाम लिखे थे। तुम्हें पता है वो कितने नाम थे? 62 नाम लिखे थे मैंने, जिनको मुझे माफ करना है। अब आप सोचोगे ऐसा भी क्या हो गया कशिश मैम के साथ कि भाई 62 लोगों के नाम लिखे थे। सो आई वॉज बीइंग बुलीड इन माई चाइल्डहुड, मेरे को बचपन में बुली किया गया था बहुत ज्यादा, और इसलिए मेरे को बचपन लगता है कि बचपन एक ऐसी चीज होनी चाहिए जहाँ पे इंसान सबसे ज्यादा खुश रहे, क्योंकि जब भी जो भी चीजें बचपन में होती है वो हम लाइफ टाइम तक कैरी करते हैं, राइट? तो मैंने 62 नाम लिखे थे उन सारे लोगों के जिन्होंने मुझे परेशान किया था। तो उनको, उन चीजों को हटाने हटाने में मुझे 1 साल लगा था पूरा। सो अब अभी आप छोटे हो, अगर अभी से आप प्रैक्टिस करोगे ना फॉरगिव करना, तो आपको मेरी तरह 8 साल 9 साल परेशान नहीं होना पड़ेगा। I was being bullied for the 9 years of my life. 9 साल तक मैं उसी पेन में रही, डिप्रेशन में रही, एंजाइटी अटैक्स में रही, पैनिक अटैक्स में रही। मैं काउंसलर के पास गई थी बचपन में, जो मुझे बिल्कुल हेल्प नहीं कर पाया था, और देयर वाज लॉट गोइंग ऑन। मैं पढ़ाई में बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। आई एम नॉट सेइंग लाई टू यू, आई ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। मैं पढ़ाई में बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, मैं ढपोर से भी ढपोर बच्ची थी। मतलब मैं पास होने के लिए मैं कितनी पढ़ाई करती थी ना, मैं बता भी नहीं सकती, और फिर भी पास नहीं हो पाती थी, मैं इतनी ढपोर थी। एंड जब जब मेरा चांस आया शो करने का लाइफ को कि दिस इज मी, तब मैंने शो किया। टुडे यू नो आई एम इंडियाज यंगेस्ट लाइफ कोच, एंड आज जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने मुझे बुली किया है, वो सब बस बैठे हैं नेटफ्लिक्स देख रहे हैं, या फिर वो मेरे को वीडियो में देखते हैं, दैट्स इट। So why I'm telling you this story is because कि मैं नहीं चाहती कि जिस तरह से मैंने 1 साल अपने आप को पूरा ठीक करने में दिया, आप दो। अगर आज आप ये सीख लोगे ना माफी देना, तो आपको सेम इंसान वापस परेशान नहीं करेगा, क्योंकि आपको पता है मनुष्य रहता है, ये माफी कर देना चाहिए, माफ कर देना, फॉरगिवनेस कर देना चाहिए। अगर आप अभी फॉरगिव करोगे तो आप लाइफ में बहुत सक्सेसफुल इंसान बन सकते हो। इसके लिए थोड़ी सी चीजें और करनी पड़ती है, जो मैं आज आपको बताऊंगी, ठीक है? सो यू आर विथ मी ऑन दिस? कर लिया तीनों? अब आप, ये होमवर्क है कि आप तीनों लोगों का इमेजिन करके उनको एवं फॉरगिव कर देना, ठीक है? अभी तक समझ में आ रहा है तो यस लिख लो। यस 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 यस, ओके परफेक्ट। तो अभी हम सेकंड टेक्निक पे जाते हैं, जिसको मैं कहती हूँ रिकंस्ट्रक्शन। तुमने कभी नाम सुना है रिकंस्ट्रक्शन का? रिकंस्ट्रक्ट करना है किसी चीज को, तोड़ के बनाना है, रिकंस्ट्रक्शन, राइट? तोड़ के वापस बनाने को। तो अभी हम क्या तोड़ के बनाएंगे? अभी हम अपनी जिंदगी वापस तोड़ के वापस बनाएंगे। कैसे? दिमाग से। तुम्हें पता हो या नहीं पता हो, हमारा सबकॉन्शियस जो ब्रेन होता है, हमारे 3 प्रकार के दिमाग होते हैं, कॉन्शियस ब्रेन, सबकॉन्शियस ब्रेन एंड अनकॉन्शियस ब्रेन। हमारी जिंदगी में जितना भी कुछ होता है या जितना भी कुछ होने वाला है, वो सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस ब्रेन की वजह से होता है। और जितनी भी तबाही मचती है ना, कि मतलब जितना भी परेशानियां आता है हमको हमारी लाइफ में, वो होता है कॉन्शियस ब्रेन की वजह से, जिसमें हम जीते हैं एक्चुअली। उसकी वजह से ना हमें बड़ी तकलीफ होती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर हमें सीक्रेट्स मिल गए सबकॉन्शियस ब्रेन को चलाने के और उसको मैनेज करने के,
तो कुछ भी हमें रोक नहीं सकता बॉस। तो मैं एक बुक सजेस्ट करूंगी इसी बात पे आपको, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। इट्स अ बुक बाय जोसेफ मर्फी। अगर आप चाहें तो इसको रीड कर सकते हैं। पर आज मैं आपको कुछ बहुत इंटरेस्टिंग बताने वाली हूँ जो आप अपनी डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं अपने ब्रेन को मैनेज करने के लिए, कि आपका ब्रेन आपके साथ साथ फ्रेंड बन के चले। अगर आपने अपने ब्रेन को फ्रेंड बना दिया तो बस मजा ही आ गया। इससे पहले एक क्वेश्चन पूछती हूँ कि कितनी बार आपने अपने आप को बोला होगा कि आई एम सच अ बैड पर्सन? कितनी बार बोला है? बोला है तो थम्स अप करो, नहीं बोला है तो थम्स डाउन करो। थम्स अप बोला है, थम्स अप बोला है, बाकियों ने नहीं बोला है। गाइज आई वांट दिस सेशन टू बी इंटरैक्टिव, क्योंकि जितना ये सेशन इंटरैक्टिव बनेगा उतना आपके लिए अच्छा है, राइट? हम सब अपने आप को कहीं ना कहीं बोलते हैं कि ओ माय गॉड मैं कितना बेवकूफ हूँ, मैं कितना, मेरे को तो पढ़ाई कभी होती ही नहीं है, मैं तो इतना परेशान रहता हूँ ना, मतलब मैं बता भी नहीं सकता। मेरी मम्मी ने मुझे बहुत परेशान करती है, मेरे पापा मुझे बहुत परेशान करते हैं। हाँ, हम बहुत सारी बातें अपने आप को नेगेटिवली बोलते रहते हैं। बोलते हैं कि नहीं? बोलते हैं, हम सब बोलते हैं। कोई भी छोटे से छोटा बच्चा या बड़े से बड़ा बच्चा हो, हर जना अपने आप को किसी ना किसी प्रकार से कोसता है। ठीक है, यार मैं ऐसा क्यों हूँ यार, मैं कितना परेशान हो गया हूँ यार, मेरे को तो इरिटेशन हो रही है यार, मेरे को तो इस इंसान के साथ यार बिल्कुल बेकार है यार, है। हम नेगेटिव वर्ड्स बहुत ज्यादा बोलते हैं। तो आज हम बात करेंगे लेबलिंग के। ये थोड़े भारी भरकम शब्द लग रहे हैं मुझे आप लोगों के लिए, बट स्टिल आई नो यू गाइज आर जीनियस, सो यू विल कैच इट। लेबलिंग मतलब होता है किसी भी चीज पे थप्पा लगाना, ठीक है? तो हम भी अपने ब्रेन को ना अभी तक ट्रेनिंग दे दी है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये अच्छा है, ये बुरा है। हाँ, पढ़ाई हमें अच्छी लगती है, पढ़ाई हमें बुरी लगती है। ये टीचर मुझे बहुत बेकार लगती है, ये टीचर मुझे बहुत अच्छी लगती है। मेरी मम्मी बहुत अच्छी, मेरे पापा बहुत बेकार है, मेरे पापा बहुत अच्छे, मेरी मम्मी बहुत बेकार है, मेरे मम्मी पापा दोनों बहुत अच्छे, मेरे दादी दादी बेकार है। बहुत सारी चीजें हैं। मेरा ये फ्रेंड अच्छा है, मेरा ये फ्रेंड बुरा है, ये लड़की अच्छी है, ये लड़की बुरी है। हाँ, हम बहुत सारी चीजें अच्छे और बुरे में काउंट करते हैं। बट आज ना हम थोड़े चेंज कर लेंगे स्टोरी को, क्योंकि जब भी हम अच्छा या बुरा कुछ भी बोलते हैं तो हमारे ब्रेन को सिग्नल जाता है। और तुम्हें बता दूं कि हमारा ब्रेन किस प्रकार काम करता है, ताकि तुम आगे से ध्यान रखो कि बोलना क्या है। अगर ब्रेन को लगेगा ना कि ये तुम्हें तकलीफ दे रहा है तो उसको तुमसे दूर कर देगा। जैसे कि अगर तुमने बोला मुझे पढ़ाई बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मेरे को आई हेट स्टडीज, आई हेट हिस्ट्री, आई हेट सिविक्स, तो तुम अपने ब्रेन को क्या बता रहे हो? आई हेट इट। तो ब्रेन बोलता है ये तो काम और करने ही नहीं दूंगा मैं तुझे, क्योंकि तू तो हेट करता है। नो, नो टू दिस थिंग। तो और आपसे वो काम नहीं हो पाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरे को ना एक्सरसाइज बिल्कुल भी पसंद नहीं है। एक्सरसाइज हमारे लिए अच्छी है, लेकिन आप बोल क्या रहे हो अपने ब्रेन को? मुझे ये एक्सरसाइज बिल्कुल पसंद नहीं है। अब आपको कितना भी करना होगा ना वो काम, तो भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपने अपने ब्रेन को बता दिया है कि आप ये करना ही नहीं चाहते, क्योंकि आप इससे नफरत करते हैं। ब्रेन का काम सिर्फ एक है, जो कि है आपके शब्दों पे रिस्पॉन्ड करना। बस। ब्रेन नहीं जानता कि आपके लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या सही है, क्या गलत है, नहीं जानता। उसको नहीं पता चलता। उसको वो सिर्फ इतना ही काम कर सकता है कि जो आप बोलोगे उसको वो रिएक्ट करेगा, बस। जैसे रोबोट होता है, रोबोट इमोशंस नहीं समझ सकता, ये नहीं समझ सकता, जो सिर्फ शब्द जो ऑर्डर होंगे वही समझ सकता है। सेम वे ब्रेन काम करता है। अगर जब भी हम ये लेबलिंग वाला काम करते हैं ना, तो ब्रेन पे बहुत गंदा इम्पैक्ट होता है। और हमारे फिर हम ना चाहते हुए भी बहुत सारी चीजें वैसे ही बोलते हैं ब्रेन को जो हमें चाहिए होती है, और फिर भी हम बोलते हैं ये तो बेकार है, नहीं करना यार, फिर भी हमें करना होता है, लेकिन फिर भी अच्छे से नहीं हो पाता है। तो हमारा ब्रेन फिर हमें बहुत तकलीफ देता है। आज हम अपनी लाइफ को रिकंस्ट्रक्ट करेंगे एक स्टोरी सुन के। ये स्टोरी ना एक फार्मर की है, ठीक है? अभी वो फार्मर क्या था, बहुत ही पुअर था और बहुत ही डर्ट में रहता था, ठीक है? तो एक दिन क्या हुआ, उसको गुस्सा आया और उसने बोला कि मेरे को ना बहुत अमीर बनना है,
क्योंकि उसका इतनी गरीबी देखी तो उसने सोचा मेरे को तो बहुत अमीर बनना है, कुछ भी हो जाए मेरे को तो बहुत अमीर बनना है। तो गांव में तो कैसा होता है ना कि एक चीज बोलो तो सब इकट्ठे हो जाते हैं, तो सब लोग इकट्ठे हो गए, ठीक है। सब लोग इकट्ठे हो गए और फिर सब लोग बोलने लगे कि अरे तू तो बन जाएगा अमीर, तू चिंता मत कर, ये मत कर, तुझका तो काम हो जाएगा, भगवान तेरे साथ है, इट इज वेरी गुड फॉर यू, तू अमीर बन जाएगा तो ये तेरे लिए बहुत अच्छा होगा। तो फार्मर ने रिप्लाई किया अच्छा होगा या बुरा होगा क्या पता, ठीक है। थोड़े टाइम बाद फार्मर ने अपनी सारी जन्म कुंजी, मतलब जितना भी उसने सेविंग कर रखा था वो सारा कलेक्ट करके वो एक हॉर्स लेकर आ गया, ठीक है। वो हॉर्स ले तो आया, तो सब लोग गैदर हो गए वापस, क्योंकि वो नई चीज लाया, वो नया हॉर्स लाया और उसने बोला था कि वो अमीर बनेगा तो वो ले आया। तो सब लोग गैदर हो गए और सब लोग बोलने लगे अरे वाह तेरी तो किस्मत चमक गई यार, तू तो कितना सॉलिड निकला, तूने तो जो बोला था वो तूने कर ही दिया, ठीक है। अब तो तेरे साथ बहुत अच्छा होगा, ये हॉर्स तुझे बहुत पैसे वाला बना देगा और तेरे को बहुत अच्छा होगा, मजा ही आ जाएगा। तो फार्मर ने बोला अच्छा होगा या बुरा होगा क्या पता, ये बैड है या ये गुड है, पता नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद वो हॉर्स भाग गया, क्योंकि उसका वो चेन खुला हुआ था तो वो भाग गया। फिर सब लोग वापस गैदर हो गए, सब लोग अरे तेरी तो किस्मत ही अच्छी नहीं है, अब भिखारियों को कभी भी अमीर बनने का सोचना ही नहीं चाहिए, हम जैसे लोग कभी अमीर नहीं बन सकते, कभी आगे नहीं बढ़ सकते अपनी लाइफ में, हम जैसे लोग गरीब हैं तो हम गरीब ही रहेंगे, हमारा कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता। तो फार्मर ने बोला गुड है या बैड है क्या पता। फिर उसके थोड़े टाइम बाद वो हॉर्स वापस आ गया, क्योंकि वो एक ऐसी जगह पे चला गया था जहाँ पे बहुत सारे, वो बैकयार्ड होता है ना जहाँ पे हॉर्स की रेसेस होती हैं, वो उधर चला गया था गलती से, और वहां का गेट खुलने की वजह से वहां के सारे हॉर्स इसका पीछा करते हुए फार्मर के पास आ गए, फार्मर के बैकयार्ड में आ गए। तो सब लोगों ने देखा, सब लोगों ने शॉक हो गए वो तो, कि अरे पहले तो इसके पास एक इकट्ठा करने के पैसे, अब तो सब इसके पास ऐसे ही आ गए। तो सब लोग उसके पास वापस आए, फिर सब लोगों ने बोला यार तेरे तो क्या मजा ही आ गया यार, तेने तो एक पैसा खर्च नहीं करा और इतने सारे हॉर्स आ गए तेरे को, अब तो तू बहुत अमीर बन जाएगा, तेरी तो किस्मत ही चमक गई, भगवान तेरे साथ है, भगवान गरीबों का साथ नहीं देता है तो किसका देता है, सब लोगों ने ऐसा बोला। तो फार्मर ने रिप्लाई किया अच्छा है या बुरा है क्या पता। फिर ना फार्मर का एक बेटा था, वो हॉर्स राइडिंग कर रहा था, ठीक है। वो हॉर्स राइड कर रहा था तो उसमें वो गिर गया हॉर्स राइडिंग से और उसका पूरा पैर, लेग, राइट लेग पूरा खूना खून हो गया। उसके बाद में हॉस्पिटल लेके गए उसको, और फिर डॉक्टर ने ये जवाब दे दिया कि अब ये वापस कभी चल नहीं पाएगा, ही वोंट बी एबल टू वॉक अगेन इन हिज लाइफ, क्योंकि क्योंकि वो हैंडीकैप बन चुका है, क्योंकि उसका लेग खत्म हो चुका है। सो एवरीबॉडी वाज लाइक कि तेरी तो किस्मत ही फूट गई, तेरा तो सब खराब हो गया, अब तो तेरे को कभी इसके लिए बीवी नहीं मिलेगी और तेरे को हमेशा ना खाना बनाना पड़ेगा, ये तो इसकी तो कभी शादी भी नहीं हो सकती अब, क्योंकि ये हैंडीकैप हो गया। तो फार्मर ने कहा अच्छा है या बुरा है क्या पता। उसके बाद में उसी टाइम पे ये अनाउंसमेंट्स चल रहे थे कि वॉर का सिचुएशन था, और जब भी वॉर का सिचुएशन होता है और आर्मी वाले लोग कम पड़ जाते हैं, लाइक डेथ हो जाती है आर्मी वाले लोगों की, तो उस टाइम पे ऐसा होता था कि ऐसे ही लोगों को इकट्ठा करते थे कि तुम जैसे यंग लोगों को, कि अब तुम्हें फाइट करना पड़ेगा हमारी कंट्री के लिए। तो सारे लोगों को इकट्ठा किया, सिर्फ बुड्ढे लोगों को छोड़ा और साथ में हैंडीकैप लोगों को छोड़ दिया, कि ये सिर्फ 2 प्रकार के लोग हमारे को ज्वाइन नहीं कर सकते, बाकी सब लोगों को ज्वाइन करना कंपल्सरी है। तो सब रोने लग गए, क्योंकि सबके बेटे, सब रोने लग गए कि अब हम अपने बेटे को कभी देख पाएंगे कि नहीं देख पाएंगे, और सबने फार्मर को बोला तू तो कितना किस्मत वाला है, तेरा बच्चा तो हमेशा तेरे पास ही रहेगा, तेरी आंखों के सामने ही रहेगा, हमें नहीं पता कल क्या होने वाला है, जंग में, वॉर में क्या सिचुएशन बैठ रही है हमें नहीं पता। सो उसके बाद फार्मर ने बोला अच्छा है या बुरा है क्या पता, वी डोंट नो व्हाट्स नेक्स्ट, इट्स गुड और इट्स बैड। और ये सिलसिला अच्छे या बुरे का या गुड या बैड का
चलता ही रहा, चलता ही रहा, चलता ही रहा, क्योंकि ये पूरी लाइफ है जिसमें हम ये डिसाइड नहीं कर पाते कि हमारे साथ अच्छा हुआ या हमारे साथ बुरा हुआ। मैं छोटी थी, मेरे साथ बुलिंग होती थी, मेरे को बहुत टॉर्चर करते थे मेरे फ्रेंड्स, ठीक है। तो मैं सोचती थी भगवान बस मुझसे नहीं हो रहा है, दिस इज सो बैड, दिस इज सो बैड, मैं ऐसे करती थी। बट आज वही सारी चीजें मेरी स्टोरीज बन चुकी हैं, वही सारी चीजें मुझे स्ट्रेंथ देती हैं कि मैं उधर से निकल गई तो ये चैलेंजेस तो कुछ भी नहीं है, इट्स गुड। मेरे साथ बचपन में सब कुछ हो गया तो मैं आज फ्री हूँ, मुझे पता है, लाइफ को नॉलेज पता है। इवन मैं लाइफ कोच भी उन सारी सिचुएशंस की वजह से ही हूँ। सो हमें नहीं पता कि कौन सी चीज हमें कब कहाँ पे लेकर आएगी, राइट? तो अपने ब्रेन को ये सिग्नल देना बंद कर दो कि ये अच्छा है या ये बुरा है। इसको कहते हैं हमारी एनएलपी भाषा में रीफ्रेमिंग। आप चाहें तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं इसको, और आप इस पे और रिसर्च कर सकते हैं, विच इज रीफ्रेमिंग। जिस दिन आपने मास्टरी कर ली रीफ्रेमिंग करने में, आपको खुश होने से इस दुनिया के सबसे ज्यादा खुश इंसान आप हो जाओगे, क्योंकि आप अच्छे और बुरे में डील ही नहीं करते हो। आपको सब गो विद द फ्लो लगता है, यू आर न्यूट्रल एंड यू बी हैप्पी इन दैट। तो अभी आपके लिए लिटिल बिट ऑफ एक्सरसाइज ये रहेगी कि आप अपनी लाइफ में 24 घंटे के लिए, 24 आवर्स के लिए ये बोलिए ही नहीं कि ये अच्छा है या ये बुरा है, कुछ बोलिए ही नहीं। अच्छा भी नहीं बोले, बुरा भी नहीं बोले, ये वर्ड्स यूज नहीं करें, ठीक है, कि भाई ये तो बहुत अच्छा, अरे ये तो बहुत बेकार हो गया, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं बोलना है। उसको अलग तरीके से सोचो कि इसको मैं कैसे बोल सकता हूँ कि मेरी बात भी हो जाए और मैं अच्छा वर्ड भी यूज नहीं करूँ और बुरा वर्ड भी यूज नहीं करूँ। अब ये आपकी स्किल्स पे डिपेंड करता है, ये आपकी क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे ले रहे हैं। सो दैट्स व्हाट सेकंड टेक्निक इज ऑल अबाउट, स्टॉप लेबलिंग एंड रिकंस्ट्रक्ट योर लाइफ बाय मैनेजिंग दिस लिटिल बेबी। देयर बहुत सारे तरीके हैं अपने दिमाग को मैनेज करने के, लेकिन ये सबसे सिंपल तरीका है, बट थोड़ा मेहनती भी है। अगर आप मेहनत करोगे इस चीज पे तो आई कैन क्लियरली सी कि आपकी लाइफ आपको कहाँ लेके जाएगी। ये बहुत अच्छी टेक्निक है, जस्ट मेक श्योर टू अप्लाई दिस इन योर लाइफ। एंड आई होप यू गाइज आर विथ मी स्टिल नाउ, बिकॉज आपके फेसेस नहीं दिख रहे हैं, सो आई रियली डोंट नो इफ यस टाइप यस, आई एम वेटिंग। अगर अभी तक आपको समझ में आ रहा है, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है बीच में तो आप अभी पूछ सकते हो, क्योंकि इसके बाद हम 2 टेक्निक्स और इंट्रोड्यूस करेंगे एंड देन वी विल बी कटिंग ऑफ। एनी क्वेश्चंस गाइस टिल नाउ? Okay, you can unmute yourself and ask me the question if you want. No. Kashish, we can't, yeah. Yes, yes, sorry. Now I'm audible? Yes, yes. Yes, ma'am. Yeah. Okay, sorry. सो सब 3 टेक्निक्स अभी तक हमने दो टेक्निक्स यूज करी हैं, विच इज नंबर 1 हीलिंग, अपने आप को ठीक करना, और दूसरा था रिकंस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ, अपने दिमाग को मैनेज करना, राइट? अब तीसरे पे आते हैं अपन। तीसरा है अब लव। अभी मेरा टॉपिक मैरी योरसेल्फ है, तो प्यार के बारे में तो बात करूंगी ना। सो यू माइट बी थिंकिंग अभी बच्चों से प्यार के बारे में क्या बात करूं, बट देयर इज वन थिंग, चाहे बच्चे हों या बड़े हों, हम सबको सीखनी बहुत जरूरी है कि हम अपने आप से कैसे प्यार करें। सेल्फ लव इज नॉट सेल्फिश। अपनी पसंद का खाना खाना, अपनी पसंद से तैयार होना, अपनी पसंद की चीजें करना, अपनी पसंद का करियर चूज करना सेल्फिश नहीं है। बट ये सब कुछ कैसे पॉसिबल हो पाएगा? जब आप अपने आप से प्यार करेंगे, जब आप अपने आप में कंफर्टेबल होंगे। आपका, मैं आजकल आई हैव सीन द किड्स अ लॉट, चाहे लड़का हो या लड़की हो, क्योंकि अभी मैं उसी पर्सपेक्टिव से आई हूँ, तो अगर यहाँ पे बड़े हैं तो दे कैन रिलेट ऑल्सो, है ना। बच्चों के साथ आजकल एक चीज बहुत ज्यादा होने लग गई है कि मैं मोटी हूँ तो मैं अच्छी नहीं दिख रही हूँ, मैं पतली हूँ तो भी मैं अच्छी नहीं दिख रही हूँ। डिफरेंट पीपल डिफरेंट ओपिनियंस। मेरा कलर डार्क है तो मैं अच्छी नहीं दिख रही हूँ, मैं लाइट कलर हूँ तो भी मैं अच्छी नहीं दिख रही हूँ, मेरे फीचर्स अच्छे नहीं है, मेरे बाल अच्छे नहीं है, मैं चश्मा लगाता हूँ या लगाती हूँ,
यू नो, ये टीचर मुझे पसंद नहीं करती, मतलब कोई टीचर मुझे पसंद नहीं करती, मुझसे कोई क्लास में बात नहीं करता, यू नो, यू हैव लॉट ऑफ थिंग्स लाइक दिस, कि मैं पढ़ाई में अच्छी नहीं हूँ मतलब मैं अच्छी ही नहीं हूँ. यू डोंट एक्सेप्ट योरसेल्फ. तो तुमको कैसे लगेगा कि सामने वाला तुम्हें कैसे एक्सेप्ट करे? और क्योंकि यहाँ पे अपने बॉडी के लिए या अपनी पढ़ाई के लिए, अपने स्किल्स के लिए आप अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करते ना, तो पता है क्या होता है, एक बहुत सी बड़ी सी ना दिक्कत आ जाती है. और वो दिक्कत क्या है कि आप दूसरों की बातें सुनने लग जाते हैं. कोई बोलेगा ना तू अच्छा लग रहा है, तो ही आप अपने आप को पसंद करेंगे. लेकिन कोई ये भी बोलेगा तू अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप 10 बार अपनी शक्ल देखते रहेंगे आईने में और बोलेंगे यार मैं क्या करूं, बाल बनाते रहेंगे, यू नो, वो स्पाइक्स बनाते रहेंगे, जेल लगाते रहेंगे, महंगे से महंगे प्रोडक्ट लेके आएंगे, स्किन ठीक करते रहेंगे. या अगर आप लड़की हैं, लड़कियों के तो अलग ही वर्ल्ड होता है नखरों का, राइट? सो क्योंकि आप अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो कोई और भी आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा. लेकिन अगर आपने ठान लिया भाई मैं बहुत अच्छा लग रहा हूँ, जिसको जो बोलना है बोलने दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका कलर क्या है स्किन का, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका बॉडी टाइप क्या है, मोटे हैं, पतले हैं, चश्मा लगा, मैं भी चश्मा लगाती हूँ, अभी लेंसेज लगा रखे हैं. कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके चेहरे पे पिंपल्स हैं या नहीं है, आप पढ़ाई में कितने अच्छे हैं या कितने बुरे हैं. जब आप बड़े होते हैं ना, एक लेवल पे पहुंचते हैं, तो ये सब चीजें काम नहीं आती. आई नो कुछ पेरेंट्स मुझे शायद सेशन के बाद बोलेंगे कि ऐसा नहीं बोलने का होता है बच्चों को, बट आई एम गोइंग टू स्पीक द ट्रूथ. क्योंकि मैं छोटी थी ना, तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे पढ़ाई के लिए कभी फोर्स नहीं किया, बट मैं खुद से ही इतनी इंफीरियर होती थी ना कि भाई मुझे इतना कॉम्प्लेक्स होता था कि पूछो मत. तो मुझे पता है वो दर्द कि जब आपको लोग नीचा दिखाते हैं. मैंने शुरुआत में भी एक चीज बोली कि लोग आपको क्रिटिसाइज करेंगे, नीचा दिखाएंगे, बट अब अपने ऊपर होता है कि अपन उस चीज को कैसे लें. सो अभी के इस टॉपिक पे मैं सिर्फ आपको एक एक्सरसाइज बताना चाहूंगी जो आपको धीरे धीरे, एकदम से नहीं बट धीरे धीरे अपने आप से प्यार करवाएगी. और धीरे धीरे ऑटोमेटिकली आप अपने आप में एक होल इंसान बनते जाएंगे, जो कि फिर आप बाद में जाके आप किसी इंसान से शादी करें या अपने करियर से शादी करें पहले, या आपके कोई बड़े से गोल्स हों, फर्क नहीं पड़ेगा दुनिया क्या कहती, बट आप बेस्ट देंगे और आप बेस्ट होंगे. मैं मुझे नहीं पता हाउ parents are going to react with this particular thing, but for kids it's important to make them understand that they need to love themselves first rather than asking for love. पढ़ाई लिखाई दिखना पहनना, ये जितनी भी चीजें होती हैं ये बड़े होके काम नहीं आती. नो वन आस्क फॉर द मार्कशीट, बट आप अपनी स्किल डेवलप करें, आपको जो पसंद है आप उसमें बेस्ट दें, लाइक लिटरली बेस्ट. मैं ये नहीं कह रही कि पढ़ाई करना ही छोड़ दो, मैं ये कह रही हूँ आप पढ़ाई करें, इट्स गुड, बट अपनी स्किल्स भी इतनी डेवलप करें कि मे बी जो बड़े होके बहुत अच्छा है पढ़ाई में, अगर वो सीए बन जाएगा तो आपके यहाँ उसको नौकरी मिल जाएगी, यू नो, you will get the नौकरी, he will get the नौकरी with you actually, under you, you know, that's what happened. So make sure to just go after what you love. पर अभी कैसे जाएंगे उसके उसी चीज के पीछे जिससे आप प्यार करते हैं, अगर आप अपने आप से प्यार नहीं करते होंगे तो. अभी तो बच्चों को पता भी नहीं अपने आप से प्यार करना कैसा होता है. तो ये टेक्निक है, मैं छोटी सी दे रही हूँ आपको, बट होप मैं कभी नेक्स्ट टाइम आपसे मिलूंगी या कभी आपसे बात करूंगी तो हम इस पे रिवर्ट जरूर करेंगे कि कैसा चल रहा है अपने आप से प्यार करना. सो आप अपने मोबाइल का कैमरा ऑन कर दीजिए, नॉर्मल वाला, ये वाला नहीं, नॉर्मल वाला. इसको इसको आप साइड में कर दीजिए, मेरी आवाज तो फिर भी आपको आएगी. अपने मोबाइल का कैमरा ऑन कर दीजिए या फिर किसी मिरर के सामने जाके खड़े हो जाइए, या फिर कोई छोटा मिरर हो तो वो ले आइए. जस्ट ग्रैब दैट, आई एम वेटिंग. डन. अभी तक कर लिया होगा होपफुली आपने. सिर्फ अपने आप को उस मिरर में देखिए. जस्ट जैसे अगर आपका ये मिरर है, एक मिनट, जैसे ये मेरे फोन का दूसरे फोन का कैमरा है, ठीक है. आई एम लुकिंग ऑन माई सेल्फ. आप अपने मिरर को देखिए, जैसे ये मिरर है, मिरर में सिर्फ अपनी आंखों को देखिए एंड से
I love you. कितना सिंपल है. अभी बहुत लोगों को तो बड़ा अजीब सा लग रहा होगा, बहुत लोगों को लग रहा होगा कि यार ये क्या करवा रही है, या फिर बहुत लोगों को लग रहा होगा कि रोना आ रहा होगा, या फिर कुछ लोगों को तो हंसी आ रही होगी, या अजीब लग रहा होगा है. बट ये क्या बताता है? ये सिर्फ इतनी सी बात बताता है कि आप अपने आप से प्यार नहीं करते. क्योंकि जब आप अपना चेहरा देख के ही ये नहीं बोल सकते आई लव यू, तो आप किसी और से दिल से कैसे प्यार करेंगे? चाहे फिर वो आपका करियर हो, मम्मी पापा हो, कोई दोस्त हो, या गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड या टीचर्स या कुछ भी, वट एवर यू से. कैसे करेंगे फिर? आप नहीं कर पाएंगे. स्टार्ट विथ योर सेल्फ. दिस इज कॉल्ड एज आई गेजिंग एक्सरसाइज. इसको आई गेजिंग एक्सरसाइज कहते हैं. मिस्टर कमल जी करके एक हैं, इन्होंने ये निकाली थी अपने बुक में, सो आई गेट इट फ्रॉम देयर. बहुत अच्छी एक्सरसाइज है ये. मैंने ये एक्सरसाइज कम से कम 2-3 साल हो गए मुझे ये करते हुए, क्योंकि लुइस हे ने भी ये शुरू किया था पैटर्न. अगर आप चाहें इस बारे में और जानना तो लुइस हे की और बुक्स हैं सेल्फ लव पे, वो कर सकते हैं. मिरर वर्क पे वो आप यूज कर सकते हैं इस चीज के लिए. बट एक चीज आपसे चाहूंगी कि अपने ऑन योर मिरर लिपस्टिक से आप लिख लीजिए आई लव यू, जहाँ पे आप ब्रश करते हैं मॉर्निंग में. एंड जब भी आप ब्रश करें, आप अपने आप को देखते हुए बोलें आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू. विदिन 7 days, विदिन 7 days आपको अपने अंदर चेंजेस लगने लग जाएंगे. और कैसे चेंजेस? ऐसे चेंजेस कि अगर आपको कोई क्रिटिसाइज करेगा ना, आप बोलोगे चलता है, अपने काम से काम रखो. एक ये चीज हो जाएगी. दूसरी चीज ये होगी कि आप अपने करियर में, आप अपने मम्मी पापा से, या आप अपने बच्चों से, या फिर आपके सराउंडिंग से ज्यादा प्यार करने लग जाएंगे. उनको ज्यादा दिल से एक्सेप्ट करने लग जाएंगे. क्यों? बिकॉज यू आर फ्लोइंग विद द सेम एनर्जी. हम प्यार करते कम है, सेल्फिशपन ज्यादा दिखाते हैं. ठीक है? क्यों? क्योंकि हम अपने आप से खोखले होते हैं ना, हम खाली होते हैं. मैंने क्या कहा, जब तक तुम्हारे पास चीनी नहीं होगी तब तक तुम कैसे दूसरों को दे सकते हो? तुम नहीं दे सकते. तुम मांग सकते हो. तुम अपने मम्मी पापा को बोल सकते हो कि आप मुझसे प्यार नहीं करते, क्योंकि आप अपने आप से प्यार नहीं करते तो वो भी पूरी तरह नहीं कर पाते, क्योंकि आपको लगता ही नहीं है कि वो आपसे प्यार करते हैं. राइट? जो टीचर आपको बेकार सी लगती है ना, आप उससे मांगेंगे ये बिल्कुल बेकार औरत है, ठीक है, ये मुझसे ना मुझे तो लव ही नहीं करती, ये तो बस जो पढ़ाई में बहुत अच्छे होते हैं ना सिर्फ उनको ही लव करती है. तो आपको मांगने की भी क्या जरूरत पड़ रही है? जब आपके घर में चीनी का डब्बा फुल होगा तो आपको क्या जरूरत है मांगने की? मांगने की जरूरत नहीं, अपने पास बड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है, चल लेगा आराम से. हम बढ़ता ही जाएगा और बढ़ता ही जाएगा और बढ़ता. हमसे चाहिए तो लेके जाओ, हमको किसी से मांगने की जरूरत नहीं है. ऐसी सिचुएशन हो जाती है. मैं जानती हूँ छोटी एज में ये सब करना बड़ा डिफरेंट है, बट इट्स टाइम कि अब हम छोटी उम्र से ही बच्चों को सिखाने लग जाएंगे ये सारी चीजें. Right? So that's what is all about love unconditionally. Right? This is the third technique which I gave you, which was eye gazing exercise. For 30 days in a row अपने मिरर पे लिखिए I love you. जब भी आप ब्रश करें उस पे आप बोलते रहिए I love you, I love you. 7 days के बाद आपको रिजल्ट्स दिखने लग जाएंगे. मे बी आज आप इस एक्सरसाइज को सीरियसली नहीं लें, बट आप जब थोड़े बड़े हो जाएंगे कि आप किसी कहीं जाएंगे, या आपको करियर का होगा, या बॉयफ्रेंड का होगा, या गर्लफ्रेंड का होगा, या फिर आपके पेरेंट्स का कुछ लफड़ा होगा, तो आपको ये याद आएगा कि ओ ऐसा. एंड व्हाई आई एम टेकिंग द नेम ऑफ अ गर्लफ्रेंड एंड अ बॉयफ्रेंड अगेन एंड अगेन, ऑल्दो पेरेंट्स हैं इस सेशन में, आई डोंट नो व्हाट दे आर गोइंग टू रिएक्ट विथ, बट क्योंकि मैं टीनेज के साथ बहुत ज्यादा काम करती हूँ, लाइक आई हैव सो मेनी क्लाइंट्स टीनेज. I am not ashamed to say this, but the reality is 90% of the cases are because of breakups, boyfriend and girlfriend thing, all the drama in their life. So it's important कि हम अभी से nurture कर रहे हैं, roots पक्की कर लें, ताकि इनको बड़े होके दिक्कत नहीं आए. मुझे नहीं पता आप अपने पेरेंट्स से कितना क्लोज हैं, कितना फ्रेंडली हैं, but the important thing is not about making boyfriend and girlfriend. It's about कि आप अपने आप पे कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं.
और क्योंकि आप इस प्रोग्राम के हिस्सेदार हैं, तो मैं ये समझूंगी कि आप अपने ब्रेन पे अच्छा खासा इन्वेस्ट कर रहे हैं। आप अभी से बहुत तरक्की पे हैं, जो दूसरे बच्चे दूर दूर तक नहीं हैं। सो क्यों ना अपने आप को अपग्रेड कर दें, जैसे हम अपना इंस्टाग्राम और फेसबुक अपग्रेड करते हैं, राइट? So moving on to the fourth technique, which is amazing, which will help you to live a life or your dreams. अभी क्या है वो, क्या है बताओ, क्या है? मैं बताती हूँ क्या है। सॉरी, थोड़ी मस्ती कर रही थी। ड्रीम लाइफ, लिविंग योर ड्रीम लाइफ। आपके ड्रीम्स हैं कुछ, अभी भले कुछ और हो, बाद में कुछ हो रहा है, डजंट मैटर, लेकिन आपके ड्रीम्स हैं, चाहे वो सबसे अच्छे मार्क्स लाना हो, या सबसे अच्छा डांसर बनना हो, या आप चाहते हो कि आप अपनी मम्मी पापा से बहुत प्यार करो, उनको बहुत प्राउड फील कराओ, या फिर यू नो कि आप कभी मुझसे मिलो, जस्ट किडिंग, या फिर आप किसी बड़ी सेलिब्रिटी से मिलो, मे बी दीपिका पादुकोण और समथिंग, जो भी आपके फेवरेट्स हैं, विकी कौशल, एनीबॉडी। आई हैव विकी कौशल इन माय माइंड बाय द वे। आपके ड्रीम्स हैं, चाहे वो कितने ही अलग हो या कितने ही अजीब हो, बस वो आपके ड्रीम्स हैं। और अगर आपको वो पूरे करने हैं, तो आपको ये करना पड़ेगा। जब आपने ये करना शुरू कर दिया और इसमें मास्टरी कर ली, तो बस मजा ही आ जाएगा। ये टॉपिक जो मैं आपको भी बताने वाली हूँ, ये सब बच्चे कर सकते हैं, ऐसा कोई ये नहीं है वो जो ये नहीं कर सकता। बट इसको ना बहुत डीप में स्टडी करना पड़ेगा, जिसके लिए हमें शायद दूसरा सेशन रखना पड़े। बट अभी मैं बिल्कुल बेसिक सा बता देती हूँ, जिसको कहते हैं क्रिएटिव विजुअलाइजेशन। चाहे तो आप लिख सकते हैं इस टॉपिक को। वापस बोलती हूँ, क्रिएटिव विजुअलाइजेशन। अभी क्रिएटिव विजुअलाइजेशन क्या होता है? क्रिएटिव विजुअलाइजेशन होता है इमेजिनेशन, ख्याली पुलाव बनाना। ठीक है, सिंपल। लेकिन कैसे? हमारी जिंदगी दो चीजों पे चलती है, एक कर्मों पे, कर्म मतलब एक्शंस, हमारे जो एक्शंस होते हैं उस पे, कि जो हम करते हैं। जैसे कि आपको बहुत अच्छे मार्क्स लाने हैं, तो आप पढ़ाई करेंगे बहुत ज्यादा, ठीक है, आप हार्ड वर्क करेंगे, आप स्मार्ट वर्क करेंगे, आप अच्छी से अच्छी ट्यूशन जाएंगे। लेकिन उसके साथ अगर आपने क्रिएटिव विजुअलाइजेशन भी कर लिया ना, तो मतलब बात पक्की हो जाएगी, मतलब पक्का हो जाएगा कि भाई अब बस हो गया। लेकिन क्रिएटिव विजुअलाइजेशन जब आप करें, क्योंकि मैंने इसको फोर्थ टॉपिक रखा है, तो देयर इज अ रीजन मैंने इसको फोर्थ रखा है, क्योंकि उससे पहले आपको ये 3 स्टेप्स करने पड़ेंगे, तब जाके क्रिएटिव विजुअलाइजेशन का असर पड़ेगा आप पे। जब आप अपने आप से प्यार करेंगे, तो आपके बॉडी में केमिकल्स चेंज होने लगेंगे। आप पास्ट को हील करेंगे, तो नेगेटिविटी आपके पास नहीं आएगी। आपको पता है रिकंस्ट्रक्ट कैसे करना है अपने ब्रेन को, तो आपको पता होगा कि आप मैनेज कैसे कर रहे हैं चीजों को। सो आप ये जब तीनों स्टेप कर लेंगे, उसके बाद ये स्टेप आएगा, ये जरूर बात याद रखना। एंड इसमें क्या होता है, मैं भी आपको करके बताती हूँ। इट्स अ काइंड ऑफ अ लिटिल बिट मेडिटेशन, ठीक है? सो अपनी आंखें बंद करो, क्लोज योर आईज एवरीवन, टेक अ लॉन्ग डीप ब्रेथ, one more and one more. When you take these long deep breaths, उसके बाद में एक इमेजिनेशन में जाओ अपनी, और अपने गोल को याद करो। कोई भी एक गोल जो आपको चाहिए हो, चाहे वो अच्छे मार्क्स हो, या कोई आपको चीज चाहिए हो, कोई गिफ्ट चाहिए हो, कुछ भी जो आपको अच्छा लगे, कोई भी एक गोल के पास जाओ। या फिर आपको वेबिनार करना हो, जैसे मैं आपके साथ कर रही हूँ, कुछ भी जो आपको अच्छा लगे। गोल मिल गया, उसके बाद में एक और गहरी लंबी सांस लेंगे और छोड़ेंगे। अब ऐसे देखो, वो गोल हो रहा है, मतलब आप वो काम कर रहे हो, आप एग्जाम दे रहे हो, आपका पीटीएम मीटिंग आ गया है, और आपके मार्क्स बहुत अच्छे आए हैं, सब लोग आपको सेलिब्रेट कर रहे हैं, या फिर आपको कोई गिफ्ट चाहिए, जो भी, ऐसा समझो कि वो एक्चुअली में हो रहा है, आपके पास वो चीज आ गई है, और सब लोग आपस में बहुत खुश हैं, और आप ना बता रहे हो दूसरों को कि ये देख मेरे पास ये है, मुझे मेरा गोल अचीव हो गया। इमेजिन करो, मैं आपको 30 सेकेंड्स दे रही हूँ इमेजिन करने के लिए।
Go with the flow. Imagine. Now, take a long deep breath again. Exhale. एंड मैं 1 से 5 तक काउंट करूंगी और 5 के बाद एक चुटकी बजाऊंगी, उसमें आप बाहर आ जाओगे. ओके? 1, 2. Have a smile on your face. 3. Take a long deep breath again. Exhale. 4 and 5. Come out. Open your eyes. You are happy, feeling wonderful, fully awake. And type it down. How do you feel right now? Type it down. How you feel. Awesome. Okay. How you feel right now. Very nice. Amazing. So what happened when you visualize? जो आपका ड्रीम है वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है and it comes to you automatically. अभी कैसे होता है? There is no wealthy person. मैं ऐसा कोई अमीर इंसान नहीं जानती, और अमीर से मतलब सिर्फ पैसे में अमीर नहीं, मतलब they are very wealthy people, very well known people. मैं ऐसा कोई इंसान नहीं जानती जो वेल्दी हो और ये एक्सरसाइज नहीं करता है. मैं जो भी बता रही हूँ, आई हैव ट्रैक्ड सो मेनी पीपल, सक्सेसफुल पीपल, एंड आई हैव जॉट डाउन देयर हैबिट्स कि वो लोग क्या क्या करते हैं, बिकॉज अगर वो कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं. इट्स वेरी इजी, वेरी सिंपल. हमारी भाषा में इसको मॉडलिंग कहते हैं. मॉडलिंग, इफ एनीबडी कैन डू इट, वी कैन डू इट. इट्स कॉल्ड मॉडल देम. Just track them what they do, model it, and you can do the same. Simple. So that's how it works, and it is called as creative visualization. इसमें दूसरी चीजों का भी ध्यान रखना पड़ता है. मैं ये नहीं कहूंगी दिस इज इट, बट इसके लिए हमें एक नया सेशन क्रिएट करना पड़ेगा क्रिएटिव विजुअलाइजेशन का, राइट? सो दैट्स व्हाट वाज ऑल अबाउट द 4 पिलर्स ऑफ मैरी योरसेल्फ प्रोजेक्ट. नाउ टॉकिंग अबाउट द मैरी योरसेल्फ प्रोजेक्ट, अगर आपको ये चारों पिलर्स बहुत अच्छे लगे हों, या फिर आपको लगा हो कि हाँ देयर इज मोर टू नो, हम और करना चाहते हैं इस पे, तो मेरा एक कोर्स अवेलेबल है मैरी योरसेल्फ प्रोजेक्ट करके. इफ यू वॉन्ट आई कैन डिस्काउंट यू. वो कोर्स नॉर्मली मैं बेचती हूँ 9,000 रुपीज में, बट अगर आप में से किसी को चाहिए होगा तो मैं डिस्काउंट अवेलेबल दे दूंगी. यू विल इट विल बी अवेलेबल फॉर यू इन 2,000 रुपीज ओनली, बिकॉज आप बच्चे हैं और मुझे थोड़ा सा लगता है कि नहीं, इस एज में रूट स्ट्रांग हो जाए तो इससे अच्छी कोई और बात नहीं हो सकती. सो इफ यू वांट यू कैन ऑलवेज कम and join the course of Marry Yourself project. आप चाहें तो मितेश सर से डिस्कस कर सकते हैं as he is your teacher. वो ऑनलाइन कोर्स है, ई लर्निंग प्रोग्राम रहता है जिसमें आपका सारा इमोशनल क्लीनिंग होता है, और ये 4 पिलर्स पे आपको बहुत सारी डिफरेंट टेक्निक्स मिलती हैं, जो टेक्निक्स सारे के सारे सक्सेसफुल लोग यूज करते हैं. और इट्स समथिंग लाइक बहुत सारे लोग ये यूज कर रहे हैं अभी, बट आप छोटे हैं तो अगर आप में से कोई लेगा तो पहली बार ऐसा होगा कि छोटे लोग, मतलब छोटे बच्चे, they have started sharing my course. It will be amazing. So yes, that is all about Marry Yourself project, and Mitesh sir can provide you with my number for any of the Q&A if you want to ask me afterwards also, कि ये जब exercises आप अपनी life में apply करें actually में, फिर आपको कोई तकलीफ है तो I'm always here, my doors are always open. And now we are opening for the Q&A session. So if you have any other questions, you can ask me. Awesome, Kashish. Thank Nothing you. I could expect anything more like that. So really awesome session. I truly appreciate your effort, and wow, wonderful. So even I learned lots of things from you, as my students knows that I like to observe and learn from anybody in this beautiful world. So I learned a lot of things from you, Thank you. especially those stories, you know, that the stories and
communication skills, and so many things, so many things. So wonderful. Thank you so much. Thank you. Thank you. It's my pleasure. Thank you. Yes, and yes, because of that, this Safal Day program is a 365 days program, and for creating future leaders, you know that. So, likewise, you say that it is not only required that education. Education only in the life is not required. There are so many things like So many. love yourself and leadership and interpersonal intelligence, control over your emotions, and so many things. So So many. these all things are required to be a successful person or to be an awesome leader in the future. And my all future leaders are here, and I'm sure they knows some points they knows very well, like visualization, meditation, and other things. But I'm sure now they really confirm and they firm that this is really most required thing in our life, and they will Yeah. do with more passionately. So I'm really thankful, Kashish, to be here and have a wonderful time. So anybody, I would like to invite parents as well as students. If you have any questions related to your study or teenage life or relationship or with the parents or friends or anything, maybe likewise, you know that Kashish is truly on Kashish, this sentence is really suits a lot. With your permission, Kashish, can I share some few words for you? Yes, yes, please. Yeah, she is really bold and beautiful because she really used some kind of word. The thing is that the people like me and other persons, they think on that whether I have to use those kind of words or not. But she is really bold, so I really appreciate that. And yeah, if you have issues related to your boyfriend or girlfriend or relationship with parents, neighbors, friends, relatives, anybody, so please turn off. Please unmute yourself and you can ask the question or you can write on chat box also, and any question, any questions. So now I would like to see your beautiful and handsome faces. So I request all the students, thank you Bhavya, thank you Devra. So all the students to please turn on your cameras so we can see your beautiful and handsome faces, my prince and princess. So Kashish, you I know, really, ah, I really like the Bhavya haircut, you know. It's yeah, really nice. he's I really like it. he's a good Jubai. Oh, sorry, he's a good Jubai. I'm so sorry. My bad. Actually, I'm just going to say that you know that हमारे ये पूरे स्टूडेंट के ग्रुप में सफल दे के स्टूडेंट के ग्रुप में झांसी की रानी दी है और एक नारी सौ पर बारी वो भी है. So yeah, so woman power, girl power is really dominant. And to have you, ये मेरी पहली कोशिश है हमारे सफल डे प्रोग्राम में एक्सपर्ट को इनवाइट करने की, एंड आई एम रियली फील दैट इट्स अ सक्सेसफुल एफर्ट. So and to invite a female or a woman entrepreneur and successful person like you, it's really my pleasure. So Dhriti, Pushti, Aryan and Keshvi, I request please अपना वीडियो ऑन कीजिए if possible, and let's start question and answer section. And before going that, Kashish, मैं दो चीज भूल गया था वो आपसे शेयर करना चाहता हूँ. One thing is that my dear student, first of all, Dhriti, Pushti, Aryan and Keshvi, are you all with me? Type yes or show your thumbs up, please. Yeah, yeah, yes. Keshvi, fine. So the thing is that स्टूडेंट में एक चीज मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ. एक्चुअली मैं आपको शुरुआत में करना चाहता था बट आई फॉरगेट दैट. सो थैंक यू, सो सॉरी फॉर दैट. बट डू नो दैट कि मैंने कशिश को सोशल मीडिया में ट्रोल होते बहुत देखा है. आई रियली मीन इट. व्हेन शी पोस्ट समथिंग ऑन लिंक्डइन और सम अदर सोशल मीडिया, तो उसको मैंने ट्रोल होते बहुत देखा है, बहुत देखा है. लोग उसको इतने, आप भी चेक कर सकते हो वेदर इट इज ऑन लिंक्डइन और फेसबुक और एनी अदर थिंग. सो लोग इतना ट्रोल करते कशिश को कि और कई लोग उससे काफी सारा विरोध करते.
तो उसने कशिश ने जो मुझे और काफी सारी चीज मैं कशिश के बारे में नहीं जानता था, वो भी आज मुझे जानने को मिला कि जैसे कि कशिश ने बताया कि जो बचपन का फियर है वो उसने निकाल दिया। 62 प्लस पीपल का जो उसने फॉरगिव करने का था वो उसने निकाल दिया। नाउ शी इज नॉट वरीड अबाउट एनीबॉडी इन दिस वर्ल्ड, चाहे लो। और द ब्यूटीफुल थिंग इज वो कभी भी डिलीट नहीं करती है। वो कोई भी नेगेटिव कमेंट है तो वो रखती है, वो ध्यान में ही नहीं लेती है कि किसी ने जो बोला वो बोलने दो, आई डोंट माइंड, मुझे तो मेरा काम करना है। तो कशिश के काम के ऊपर वो जब भी कुछ अच्छा पोस्ट करने जाती है, डू नो दैट कि यंगेस्ट लाइफ कोच होना और वो भी रिलेशनशिप के ऊपर बातें करना, लाइकवाइज इट इज वेरी डिफिकल्ट। So it just like that कि I am doing that a parenting coach for a teenager student or parents, and but I don't have a teenager child in my home with me. मेरा बच्चा भी 10 साल का है। तो इट्स लाइक दैट कि लोगों को ऐसा लगता है कि मेरा बच्चा टीनेज का नहीं है तो मैं कैसे टीनेजर का पेरेंटिंग करवा सकता हूँ या टीनेजर को मैं मेंटोर कर सकता हूँ। इट इज नॉट लाइक दैट। सो सिमिलरली कशिश को बहुत सारे नेगेटिव क्वेश्चंस मिलते हैं, बहुत सारी नेगेटिविटी मिलती है, लेकिन कशिश कभी भी हिम्मत हारती नहीं है। आई एम श्योर कशिश को तब जोश डबल हो जाता है कि अच्छा, यानी कि कोई तो मेरा काम देख रहा है ना, भले ही वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। लेकिन सामने वो भी मैं आपको बताता हूँ कि कशिश को सपोर्ट करने वाले और कशिश को पॉजिटिव देखने वाले हमारे जैसे लोग भी बहुत सारे होते हैं। तो दैट इज अ ब्यूटीफुल थिंग ऑफ लाइफ कि जब भी बेटा आप लोग कुछ अच्छा करते हो ना, तो आपके घर में, आपके आसपास में, या आपके स्कूल में, आपके क्लास में, कहीं भी वो ऐसे लोग बेटा रहेंगे जो आपको नेगेटिविटी कराएंगे, आपके पीछे पड़ जाएंगे। लेकिन देन एट दैट टाइम यू हैव टू आस्क योरसेल्फ वेदर आर यू रियली दैट थिंकिंग ऑफ दैट, उसकी वजह से आप पीछे मुड़ोगे या आगे बढ़ते जाओगे। सो दैट इज द थिंग, राइट? सो एक्चुअली आई वांट टू ऐड आल्सो समथिंग, क्योंकि जैसे क्रिटिसिज्म है, अभी कुछ भी करेंगे ये लोग तो मिलता ही मिलता है कहीं ना कहीं से, सम वे और द अदर दे गेट क्रिटिसिज्म ऑन समथिंग। सो मेरे एक रूल है कि कभी भी मुझे कोई कुछ भी बोलता है कि मैं क्रिटिसिज्म को कैसे डील करती हूँ, सो आई जस्ट राइट थैंक यू फॉर शेयरिंग मी दिस। बस, तुम गंदे लग रहे हो, थैंक यू फॉर शेयरिंग मी दिस। तुम्हारी वीडियो सबसे बेकार है, थैंक यू फॉर शेयरिंग मी दिस। तुम होती कौन हो ये बोलने वाली, thank you for sharing me this. I don't say a word more than thank you for sharing me this. So ये ना ऐसा समझ लो गुरु मंत्र है मेरे लिए क्रिटिसिज्म से लड़ने का। It's a way to deal with the criticism, because if I speak with them, if I fight with them, तो मेरा दिमाग खराब हो जाएगा और मैं अपना काम नहीं कर पाऊंगी। आई क्लियरली रिमेम्बर, अभी तो ठीक है, आई एम एंगेज्ड फ्रॉम लास्ट एक साल हो गया आई एम एंगेज्ड, तो उससे पहले तक तो आई वाज नॉट इन अ रिलेशनशिप एंड आई वाज कॉल्ड एज अ रिलेशनशिप कोच। सो आई क्लियरली रिमेम्बर एक बार लिंक्डइन पे क्या हुआ था, एक वीडियो बहुत ज्यादा ट्रोल हुई थी, एक वीडियो को बहुत ज्यादा इट्स लाइक 2 लाख से ऊपर व्यूज मिले थे, 2 लाख से ऊपर मिले थे। तो उसमें बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स भी आए थे। तो उसमें एक ने लिखा था, अभी हम ऐसे लोगों से एडवाइस देंगे क्या जिनके खुद के रिश्ते नहीं हैं, और और एक और मिला था, एवरी टॉम डिक एंड हैरी कैन स्टार्ट saying themselves as life coaches, shame on you, #you are not worth it। और एक ने एक और चीज लिखी थी कि वो तो सर्टिफिकेट तो कोई भी कर सकता है, हम भी, लेकिन हम तुमसे ज्यादा ज्ञानी हैं, हम कुछ ऐसा शो ऑफ कर देंगे। तो दे रोट अबाउट इट। सो मैंने रात में वो कमेंट्स देखे थे और मैंने देखा छोड़ो यार, अभी कौन मगजमारी करे, सो जाओ शांति से। मैंने फोन रख दिया साइड में, मैं सो गई। सुबह उठी तो यू वोंट इमेजिन मैंने क्या देखा। मैंने देखा कि चलो अब देखती हूँ अभी कितना हुआ है, इतना गाली गलौज कितना और बड़ा है, कितने लोगों ने और तकलीफ दी है। तो व्हेन आई ओपन दैट पोस्ट, जिन जिन लोगों के नेगेटिव कमेंट्स थे, उसके अलावा उनको कमेंट करने वाले 6-7 लोग और थे, उनको सुनाने वाले कि तुमने ऐसा लिख कैसे दिया, तुम्हें शर्म नहीं आती क्या, इट्स अ शेम ऑन यू कि तुम ऐसे लोगों को क्रिटिसाइज कर रहे हो, तुम जैसे लोगों की वजह से हमारे यंग बच्चे कुछ कर नहीं पाते, हम कुछ वो नहीं कर सकते, वो उसकी लाइफ में जो भी है उसका पर्सनल लाइफ है, इट डजंट मैटर। सो मैंने देखा, ओह दिस इज नाइस। सो दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन यू डोंट फाइट एंड यू इग्नोर, you build your thing and the rest will follow to you. But yes, there will be people
जो आपको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, देयर विल बी पीपल हु आर मोर देन यू, ठीक है। उसको ना एक स्लाइट मैं कहती हूँ पॉजिटिव जेलेसी कहती हूँ इसको। लोगों को लगता है जलना तो बड़ी बेकार बात है, जलना बहुत मजेदार बात है, जलना बहुत मजेदार बात है। जब आपको लगता है ना कि ये इंसान जो आपके सामने मतलब आपके साथ शुरू किया है, आपके साथ का कंपटीशन है, वो आपसे आगे जा रहा है, यू आर हैप्पी फॉर देम, बट वो स्लाइट सा अंदर आता है कि यार, वो यार को ना ऐसे यार में मत लो, वो यार को लो, यार अब तू देख अब मैं क्या करती हूँ। So you play the game. That's what happened. It's called as jealousy. It's a very good thing. लोगों को लगता है वो जलती है ये तो. I'm speaking about this because your kids and you should know these kind of things at a young age. क्योंकि jealousy is very nice. You upgrade yourself because of jealousy. Perfect. But ऐसा नहीं. But इन चीजों को सिर्फ career के point of view से लेना, दूसरी चीजों में मत लेना. This is a funda. Always take these things on a positive manner only. एंड यू नो इसीलिए मैंने वो बोलते हैं ना कि ट्रक के पीछे जो सुवाक्य लिखे होते हैं ना वो बहुत काम में आते हैं लाइफ में। लाइकवाइज के जलो मत बुरा बराबरी करो। सो काफी सारे ट्रक के पीछे मैंने ये लिखा है। इस रियली अच्छा, nice. जलो मत बराबरी करो, यानी डोंट गेट जेलस बट ट्राई टू अपडेट योरसेल्फ टू सिंपल थिंग। सो वंडरफुल। एंड Kashish is from that Rajasthan, the land of king and queen, Udaipur se hai, and the city of lake. And another thing is that what I recall that during your session, Kashish, that you shared that about relationship. कि पहले आप can you please repeat that thing that कि आपने बताया था कि आप कोई भी relationship है उसको enjoy करो, लास्ट में आपने बताया था, एंड रिस्पेक्ट करो एंड इम्पोर्टेंस समझो। मुझे सिर्फ इतना कहना है मेरे यंग बच्चों से कि चाहे वो कोई भी रिलेशनशिप हो माय डियर, कि चाहे वो आपके पेरेंट्स के साथ हो या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड या फ्रेंड्स या रिलेटिव और समथिंग, लेकिन सबसे पहले प्रायोरिटी में आना चाहिए हम हमारी सेल्फ। जैसे कि आपने मेरे स्टूडेंट ने बहुत बार सुना है, लव योर सेल्फ एंड बिलीव इन योर सेल्फ एंड ऑल थिंग्स। सो वो होना चाहिए। सबसे पहले होना चाहिए कि आपको सही मायने में आपकी लाइफ के बारे में पहले सोचना है, आपकी फैमिली के बारे में पहले सोचना है, देन यू हैव टू थिंक अदर थिंग। सो फर्स्ट इज योरसेल्फ, सेकंड इज योर फैमिली और लाइफ, एंड थर्ड इज आइदर लाइफ और योर फैमिली। वो आप प्रायोरिटी सेट कर सकते हो, लेकिन ये तीन चीजों के बाद में बाकी सारी चीज आती है। चाहे वो कोई भी रिलेशन हो या कोई भी चीज हो, वो उसके बाद में आता है। सो ये तीन चीज पहले होनी चाहिए। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम, मुझे जो कहना था मैंने इन नटसेल मेरे बच्चों को कह दिया है। या सो वन बाय वन, हु इज द फर्स्ट? बी अ लीडर एंड आस्क अ क्वेश्चन। हु विल आस्क अ क्वेश्चन? और who is going to share something about this wonderful seminar or meeting or program? By the way, कशिश को वेबिनार करना सीखना है अच्छी तरीके से, तो कौन सिखाएगा? हाँ, ये कौन सिखाएगा? ये बताइए। मैं तो नहीं सिखाऊंगा क्योंकि तो मेरे स्टूडेंट में से कौन सिखाएगा वंडरफुल वेबिनार कैसे करते हैं? वो कौन सिखाएगा? सो द थम्स अप और अनम्यूट योरसेल्फ और टाइप मी। अभी तो सब लोग आपके बच्चे शाय हैं मुझे लगता है। नहीं, आपको पता नहीं है, ये मिस्टर इंडिया वाली फौज है हमारी। अच्छा, या सर, आई थिंक दैट आई वुड लव टू ट्राई। डेफिनेटली ट्राई तो करते ही नहीं ना, हम कहाँ ट्राई करते हैं, हम तो ये नहीं करते हैं ना बेटा। सो ये झांसी की रानी है हमारी जीती मौर्य। सो she will definitely have a session with you for that. Definitely. Okay. So yes, anybody else? Any questions? Share something or ask a question, please. ऐसा मौका फिर कभी नहीं मिलने वाला है। So please unmute yourself and ask a question now. चलो। I'm waiting. I guess या तो बहुत अच्छा लगा या तो बहुत बेकार लगा, समझ नहीं आ रहा कैसा लगा, बट ठीक है। वो मैंने आपको बताया था ना कि मेरे स्टूडेंट की खासियत है कि वो
टाइम पर आना और टाइम पर जाना, तो अभी 1 आवर के प्लस हो गया, तो इसलिए शायद वो लोग सोच रहे हैं कि भाई अच्छा because they are managing the time, they might have some other plan. Am I right, my dear? So anyway, chalo, let's show your lovely faces. Aryan, Dhriti, Pushti, and Peshwe, and Bhavya. Please turn on your video, and now we are going to finish this seminar with a beautiful one group picture. Are we clear? And Kashish, can we stop this recording now? Yeah, definitely. Anybody have a question? Please say yes or no. No, right? Aryan, Keshvi. So, thank you, Kashish, by the way. Thank you so much.